कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर हमलावर बने हुए हैं। इस दौरान एक बार फिर से न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। जहां एक तरफ हमारी विचारधारा महात्मा गांधी की है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मेरा इरादा आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना है, जहाँ आप मुझे कह सके कि आप ऐसा सोचते हैं। मुझे आपको ये बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं क्या मानता हूँ। मैं यहाँ आपके साथ अपने मन की बात नहीं करना चाहता। My intention is to build a relationship with you. My intention is to have a relationship with you, a affectionate, loving relationship with you, where you can say to me that, Rahul, this is what we think. Rahul, this is how you should think about the relationship with the United States. This is what is important. This is what we need to focus on. I'm not interested so much in telling you what I believe. I don't want to do Man Ki Baat over here. Right? I'm interested in आपके मन में क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस भविष्य देखने में असमर्थ हैं। उनसे अगर अभी से पूछ लिया जाए कि ट्रेन दुर्घटना क्यों हुई, तो वे कहेंगे कि कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस शासनकाल में रेल दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस के समय जब ट्रेन दुर्घटना हुई थी, उस समय कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि अंग्रेजों की गलती है इसलिए ऐसा हुआ, बल्कि उस समय तत्कालीन रेल मंत्री ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। Back home we have a problem. And I will tell you the problem. Simple. BJP and the RSS are incapable of looking at the future. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाउ you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने। Right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers, you listen to the prime minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I'm resigning. Right? So this is the problem that we have back home. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया
ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ? कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया? भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल। भैया पीछे देखो। नाउ यू थिंक अबाउट इट। All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो? मरवा दिया आपने? Right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर पीएम मोदी और आरएसएस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई मौकों पर विदेशी धरती पर भारतीय प्रधानमंत्री का अपमान किया है। अपने इन्हीं बयानबाजी के कारण राहुल गांधी अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर आते रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि देश की आम जनता भी राहुल गांधी के विदेश में ऐसे रवैये पर अपनी खासा नाराजगी जताती रही है। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान पर अब तक किसी भाजपा नेता का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है जब देश में ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे पर लोग अपना दुख जता रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर पीएम मोदी और आरएसएस की विचारधारा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।